Sri K.C. Nenan Srinivas. Okay, go ahead. Thank you, sir. Sir, the Government of India has allotted rupees 1,000 crores in 2015 March, sir, to the Guntur and Vijayawada municipal corporations for the stormwater drainage for Vijayawada and the drainage for Guntur municipal corporation, sir. 468 crores for Vijayawada and 532 crores something for Guntur municipal corporation. The central government, the Government of India has given the amount to the state government. They has transferred on 2015 March 31st, sir, the 100% amount. But the stormwater drainage after 9 years in Vijayawada is 30% to 40% completed, sir. The total after 2019, after the government change in Andhra, the total work is stopped, sir. The 100% amount is released to the state government by the Government of India. The then Urban Development Minister Sri Venkaiah Naidu garu gave the sanction the fund, sir. And the state government is not has totally stopped the works of both Guntur Municipal Corporation and Vijayawada Municipal Corporation, sir. Drainage for underground drainage for Guntur Municipal Corporation, sir. Stormwater drainage for Vijayawada Municipal Corporation, sir. I would like to ask the minister to use his good offices to on the state government, sir, to complete this work, sir. Sir, we are reviewing the projects under all the central schemes on a regular basis. Any state government that has been given funds for a specific purpose is required not only to spend those funds, but to spend them according to the correct prescribed system. Now, what has happened in this particular incidents in Vijayawada city under Amrut and Amrut 2.0, I can give the figures which have been 8 projects worth 128.53 crores have been taken up by the state in Vijayawada city, 6 projects for development of parks, etc. If a stormwater drainage project is not working, and it is a legacy of what happened in the past, again, we are reviewing these projects, sir, and I can assure the honourable member that from the central government's time, right from 2014 May, these are cooperative federalism schemes which started in June 2015. It is our endeavour to ensure that all state governments spend the money which has been allocated to them. And I am also very sure that the progress which he has cited only at 33%, I will also get the latest figure and find out why that money has not been spent, the reasons for not spending that money, etc. And there are ways and means in which we can, minus that from some other account. So there are ways of dealing with this, and I assure you we will be looking at this very carefully. Question number 266, Sri G. Ranjit Reddy. Manish Mantri ji. Statement is laid on the table of the Manya Sadasya. Question number 267, Sri Gopal Shetty. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 267 माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने भवन निर्माण के कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। पूरे देश भर में तो घूमते हैं, लेकिन मुंबई शहर में भी वो बार बार आते हैं। अध्यक्ष जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो देश के प्रधानमंत्री ने लाया, उसको इम्प्लीमेंट भी हो गया। कंप्लायंस भी बहुत सारे कम हो गए, लेकिन कुछ अधिकारी उनको जो पेपर चाहिए जब तक वो नहीं मिलता है तब तक ऑनलाइन लोड करवाते नहीं है, और इसके वजह से भवन निर्माण का जो परमिशन मिलना है वो प्रोसेस बहुत धीमा गति होता जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उनके संज्ञान में ये बात आई है क्या? अगर आई है तो इसके बारे में क्या उपाय योजना वो कर रहे हैं? सर, जैसे कि उत्तर के बॉडी में कहा गया है, अर्बन प्लानिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है और 12th शेड्यूल संविधान में अर्बन प्लानिंग जो है ये फंक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज का।
इसलिए जो हमारे पास प्रपोजल आते हैं वो राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडी से आते हैं। मुझे लग रहा है दी ऑनरेबल मेंबर वो चाह रहे हैं कि कुछ जो डेलीगेशन दी गई है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, वहां पे आर्किटेक्ट्स जो रजिस्टर्ड हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और लाइसेंस सर्वेयर्स और इंजीनियर्स में, उनको प्लानिंग अथॉरिटी दी गई है बीएमसी की कि लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क जो छोटे प्लॉट हैं जो 150 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर की, जो उसको लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क कहा जाता है, उसकी सर्टिफिकेशन और अथॉरिटी उनको दी गई है। ये चर्चा कई बार हुई, हमारे पास लोग रेफरेंसेस भी करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, पर इसका सॉल्यूशन सभापति महोदय स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार सिर्फ एडवाइस कर सकती है, पर वो कैसे अर्बन लोकल बॉडीज 12th शेड्यूल में, और क्योंकि अर्बन प्लानिंग स्टेट सब्जेक्ट है, क्या करना चाहे। मुझे लगता है कि मैं ऑनरेबल मेंबर के साथ बैठ सकता हूं, और ये लोकल इशू है, ये सवाल जो है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशंस का है, और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग जो वर्ल्ड बैंक हुई है, हम कहां से 140 से 27वें रैंक पे आ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सवाल पूछा गया, मैंने जवाब दिया, पर इसका आंसर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। और माननीय सदस्य हर प्रश्न में कि मैं आपसे बैठ के बात कर लूंगा, तो प्रश्न काल में पूछेगा क्या? आप तो बता दो, जो आप विषय हो तो कह दो। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी, मंत्री महोदय जी ने कहा कि यह सब्जेक्ट स्टेट का है, स्टेट के पास से अगर कोई पैसे का कंट्रीब्यूशन हो, लैंड ट्रांसफर हो, तो मैं बात को समझ सकता हूं। हम तो सिर्फ परमिशन मांग रहे हैं। राज्य सरकार ने भी 150 और 200 मीटर के प्लॉट को डायरेक्ट आर्किटेक्ट परमिशन दे सकते, इस प्रकार का कायदा बनाया, लेकिन आर्किटेक्ट लोग कितना पैसा लेते हैं और यह सब हमको पता है। सामान्य व्यक्ति जो है वो ये सारे मीट को पहुंच नहीं पाता है। तो मैं, देश के प्रधानमंत्री ने इन दिनों में तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी कायदा बना दिया है, तो क्या 150 और 200 फुट के जो परमिशन, मछुआरे जो होते हैं मुंबई शहर में बहुत सारे लोग हैं, उनको परमिशन प्राप्त करने के लिए एक मॉडल प्लान बना दिया जाए 150 और 200 फुट का सरकार के ओर से, और उसके जो भी कॉर्पोरेशन को पैसा भरना हो भर के तुरंत उनको परमिशन मिलना चाहिए। ये तो बहुत आसान है अध्यक्ष जी। ये जो सुझाव है ये ऑनरेबल मेंबर और मेरी पहले भी बात हो चुकी है, हम लोग इस पे सोच विचार कर रहे हैं, एंड दिस इज लुक्स टू बी अ फीजिबल आइडिया, और हम इसको परस्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 268 श्री मितेश पटेल। क्वेश्चन नंबर 268 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का जो लिखित में जवाब है पूर्ण रूप से संतोषजनक है एवं प्रदर्शित करता है कि माननीय प्रधान सेवक भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता महिला, दलित, आदिवासी और युवा वर्ग का सशक्तिकरण है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर किसी एमएसई द्वारा बनाए उत्पाद तक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, पीएसयू आदि की पहुंच नहीं है, तो वो एमएसई अपने उत्पाद से इन सभी को कैसे लाभान्वित कर सके और खुद भी लाभान्वित हो, इसके लिए सरकार की कोई योजना है? अगर नहीं है तो क्या सरकार इस समस्या से परिचित है? यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या प्लानिंग की है जिससे अभी तक 25% के लाभ से वंचित एमएसई भी इसमें भागीदार हो सके? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पीपीपी मॉडल कम है, 5 मिनट बचा है तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ये खरीद की जाती है, और विशेष रूप से इसे खरीद नीति के अंतर्गत 4% जो SC ST हमारी जो है एमएसएमई है, उनके द्वारा ये का माल इनका खरीदा जाता है, और विशेष रूप से NSI के द्वारा इन SC ST की ज्यादा खरीद के लिए एक NSS SC ST हब का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें खरीद की जाती हैं, और उसे जो 25% एमएसएमई की खरीद के लिए जो योजना बनाई गई है उसके तहत ये खरीदा जाता है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर
दुर्गादास उड़के, दुर्गादास जी, माननीय अध्यक्ष जी, संक्षिप्त में पूर्णा मंत्री जी, टाइम हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अरे प्रश्न धन्यवाद पूछने का नो, अवसर सीधा क्वेश्चन पूछो, आप तो समय हो गया ना। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश में नेशनल SC/ST हब का कोई कार्यक्रम करवा रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैतूल में प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने SC/ST हब के कार्यक्रम के लिए एक कनक्लेव की बात की है। हाँ, मध्य प्रदेश में अभी SC/ST झाबुआ में